I request His Holiness Draikung Kyabgong Chetsang Rinpoche to proceed with the inaugural speech. So today we are in the 21st century. So because of the technology, so bring all together world people, and this technology and economic booming and very fast developing, it is bring to many good for economic things, but also sometimes they have a lot of problems in societies and a lot of violence, a lot of environment problems facing, and so we this time very important. Now they're all the spiritual things we together, also contribution, work together contribution. This is an important time. आज हम सब 21वीं सदी में है, जो मशीनी युग, जो हाई टेक्नोलॉजी के युग में है, जो कि बहुत ही एक साइड से तो बहुत अच्छा है, मगर परंतु दूसरे साइड में हमें इस युग में गरीबी और अमीरी के बहुत अंतर हुआ है। तो इसके साथ साथ हमें धार्मिक जो उस विषय से हमें भी जो है एक साथ जुटकर धार्मिक कार्य में हमें किस तरह से आगे हो, तो उस विषय में हमें गंभीर विचार करना अत्यंत आवश्यक है। So 4 weeks ago, I was in New Delhi, attended one conference that is in major 9 Indian religions school together, so religious conference organized by Dalai Lama's Trust. So they have a lot of discussions. Also, Dalai Lama also, all the religions together work for peace and talking a lot of things. And also he is saying beyond the religions, they have millions of non-believers. So this all together, so humanity level, so do some good things for love, compassion, contribution. So talking about beyond of religions, not only. So in order to do that, and first I think very important to you, this organization, World Buddhist Unity, to do peace. This is a very important first step. I think is important. अभी 4 सप्ताह पहले हम दिल्ली में परम पावन दलाई लामा जी के अध्यक्षता में वर्ल्ड इंटर रिलीजियस हार्मनी का सेमिनार हुआ था। तो उस समय भी सब धार्मिक संस्था के अलग अलग भिन्न धर्मों के प्रवर्तक वहाँ पहुँचे थे। उनमें भी विचार हुआ था, विचार मंथन हुआ था। तो उस दौरान भी यही विचार है कि सब आजकल जैसे थर्ड स्प्रेडिंग बुद्धिज़्म, ये बहुत अच्छा विषय है। और बुद्धिज़्म जो धर्म से परे होकर, जैसे किसी का उससे हटकर हमें और भी करुणा और मैत्री के भावना सोचना, समस्त प्राणियों के हित के लिए ऐसा विचार अत्यंत आवश्यक है। तो हम इस इस सेमिनार में बड़े बड़े धर्मगुरुओं का एकत्रित होकर उन्होंने विचार मंथन किया कि धर्म से परे होकर एक मानवतावादी, ऐसा उस पर हमें गहन चिंता की आवश्यकता है। Quite a long time ago, I was also thinking that all the Buddhism's unity do something. Then a few years ago, we connected with your organization, World Buddhist Unity for the Peace. So I'm very happy about this. And today also I could attend here. I'm very happy. And in order to do this, I also doing some actions that we bought some land for the Sharavasti. So that is mainly for the world religious activity places. We're going to build one temple there. We're also going to build some hospital there. Mainly every year, 5 days, we gathering together, and then we do prayer mainly. So far, many
You know, the Himalayas, there are many Tibetan communities, they're doing mainly the monks gathering and the prayers. But this we do in lay people gathering together. So together, you know, different religions. Next year we just beginning. We starting planning the bring from here, Nagpur, and also from the Bhutan, Nepal, around Himalayas, Sikkim, Raul, Spiti. We totally 2,000. We planning this November the 3rd to 5 days. बहुत सालों से मेरा विचार है कि एक विशेष धर्म का ही नहीं, बहुत सारे भिन्न भिन्न धर्मों के, जैसे हमारे थेरवादी और महायाना, उसको छोड़ करके भिन्न भिन्न धर्मों के वहाँ पे एकत्रित होके, और श्रावस्ती में मैंने आगामी 2015 3 नवंबर को एक धर्म सम्मेलन या एक एकत्रित होके एक समन्वय का वहाँ पे विचार है। और वहाँ पे एक बहुत बड़ा बौद्ध एक मंदिर का भी निर्माण करना है। तो 3 नवंबर को वहाँ पे बहुत हिमालय से, जैसे लद्दाख, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, जितने हिमालयन क्षेत्र से 300 जितने भी आ सकते हैं वहाँ पे। आज तक तो क्या भिक्षु भिक्षुणियाँ ही जो है धार्मिक उसमें लगे रहते हैं। अभी जो है एक सामान्य जन, जैसे आप लोग, जैसे घर गृहस्थी लोग वहाँ पे आकर तो 3-5 दिन का वहाँ शिविर या उसमें पूजा पाठ अर्चना करने के लिए ऐसा हमने विचार बनाया है। तो आप लोग भी अगर इसमें से यहाँ से कुछ लोग आ सकते हैं तो हमारा निमंत्रण है। तो वहाँ पे आके ये वो भिक्षु और भिक्षुणी वहीं से सीमित नहीं रहकर हमारे समस्त प्राणी उनको, मतलब जैसे आप लोग घर गृहस्थी लोगों पे ऐसे धर्म कार्य में लग रहे हैं। तो इसलिए हिमालयन क्षेत्र से भी है और प्लेनों से भी है, और इससे छोड़कर दूसरे कंट्री से, जैसे श्रीलंका, भूटान, नेपाल वगैरह से, तो वहाँ पे आके उन्होंने धर्म का कार्य में, तो पूजा पाठ या मंथन विचार जो भी एक धर्म से परे हटकर, मतलब एक मानवतावादी का ऐसा संगठन करना, मतलब ऐसा विचार है मेरा। At the present, we are planning the common therapeutic tradition, Mahayana, we all together come pray morning, the Pali prayer. Then afternoon, then on your language, you're teaching basic Buddhist teachings. And then afternoon, then we're going to chant the Tripitakas, Buddha's teaching. Then evening, with some show, cultural shows. That's the main we're planning the program. After December, the beginning of December, this international organization, the final meeting, then we're going to send the invitation to different places. We're going to do that. इस ये संस्था जो बनाया वहाँ पे जैसे महायाना थेरवादा अपने संप्रदाय के जो अपने भाषा में, जैसे पाली हो तो पाली में वहाँ पे चांटिंग करना, और या टिबेटन में या संस्कृत में अलग अलग जो संप्रदाय है वहाँ पे आके एकत्रित होके वो आप अपने बोली में या भाषा में वहाँ पे चांटिंग करेंगे। और ये आने वाले नवंबर में इसका कार्यक्रम होगा, और दिसंबर में, अभी इस 2014 के दिसंबर में हम लोग सबको निमंत्रण भेजना है। आगामी 2015 को ये कार्यक्रम होना है, तो आप सबको शायद हम यहाँ से निमंत्रण भेजेंगे। During that time, we also planning invite some few scholars, and then I wish that we find with discussion, find some Buddha's main root teaching something like Dharmapath. They have a Hindu, they have everybody have a Gita. Similar that we have something, find something. What is best, like Dharmapath or whatever. So need to one important one. Of course, you in tradition, different cultural history, own tradition. They have some your views. You have all the philosophies. Okay, this is you keep one side. Then another now, 21st century, everybody Buddhism together need one concrete one
things. That's what I'm looking for. So through this, we pray and we discussion. We find something good for everybody. For Buddhism, we find something. जैसे कि अलग अलग धर्मों में आप अपना एक ग्रंथ का एक महत्व होता है, जैसे सनातन या हिंदुओं में जो है एक गीता का उनका श्रेष्ठ माना जाता है, वैसे ही हमारे बौद्धों में भी चाहे संप्रदाय छोड़कर उसमें जो धम्मपद है, धम्मपद में जो है उसका विचार जो है चाहे आप अपना संप्रदाय अलग हो, चाहे विचार तो उसमें एक है, मतलब समस्त। तो इसी प्रकार हम लोग वहाँ पे जब श्रावस्ती में वहाँ पे सम्मेलन रखेंगे, वहाँ पे सब आकर तो हम दंपत में एक विशेष मतलब उस पर परिचर्चा करके शायद लोगों को ये पता लगे कि नहीं तो हम क्या है, ये महायाना, वो वहाँ ये दूसरे हैं संप्रदाय के, ये थेरवाद, ये इस तरह का लोगों के विचार में ऐसा है। तो उसको दूर करने के लिए हम लोग एकत्रित होकर ये धम्मपद, हम मतलब भाषा की वजह से थोड़ा सा लोगों में उसमें कम्युनिकेशन में गैप हो गया, नहीं तो मीनिंग तो सब उसमें सार्थक अर्थ जो है उसमें धम्मपद का जो निचोड़ है, यानी कि एक हमारे को जो है एक, जैसे यहाँ पे लिखा है एक बौद्धमय, तो शायद उसी का जो सार्थक हो जाए। अभी अभी जो आपके सामने हिज होलीनेस दी ड्रंकन कैबगॉन चेतसांग, इन्होंने जो आज के इस कॉन्फ्रेंस में उद्घाटन भी किया, उद्घाटन भाषण भी दिया है, और उन्होंने आने वाले जो भी कोई दिन है उसमें उन्होंने अपने प्लानिंग बुद्धिज़्म स्प्रेड अप करने के लिए अपने प्लानिंग जो है वो आपके सामने हिज होलीनेस ड्रंकन कैबगॉन चेतसंग इन्होंने आपके सामने रखे हैं। मैं आपका इस कॉन्फ्रेंस में तहे दिल से स्वागत करता हूं। यहाँ डायस पे भूटान के भी आदरणीय बौद्ध भिक्षुगण यहाँ आए हैं, और थाईलैंड के भी बौद्ध भिक्षुगण आए हैं, हमारे नागपुर के भी बौद्ध भिक्षुगण आए हैं। साथ साथ में यहाँ हमारे डायस पे जो है नेपाल के भी है डॉक्टर यहाँ उपस्थित है, मैं उनका भी तहे दिल से स्वागत करता हूँ। मुझे पता है ब्रह्मजाल सूत्र में बुद्ध कहते हैं, ब्रह्मजाल सूत्र दीघ निकाय का है, उसमें बुद्ध कहते हैं भगवान कि बुद्ध सम्यक बोलते हैं, निर्भीकता से बोलते हैं और दृढ़ता से बोलते हैं। तो मैं डरने वाला आदमी नहीं हूं, ठीक है, और दृढ़ता से बोलूंगा, निर्भीकता से बोलूंगा। मित्रों, सवाल यह है कि जो शांति और अशांति है, शांति और अशांति है, वो मुझे लगता है जहां तक मैं समझ पाया हूं इतनी छोटी सी उम्र में, थोड़ा बहुत पढ़ के लिख के थोड़ा सा, मुझे लगता है कि शांति और अशांति का जो मामला है या जो मसले हैं वो दो तरह के हैं। एक तो मामले ऐसे हैं जो हमारे अपने अंदर के मामले हैं, हमारे अपने मन की, हमारे अपने शरीर की, हमारे अपने मानसिकता की अशांति की बात है, उसकी शांति की बात है। दूसरी जो अशांति है वह अशांति राज्य के द्वारा दी गई है, वह अशांति धर्म के द्वारा दी गई है, वह अशांति कानून के द्वारा दी गई है। अब जो शांति हमको हमारे द्वारा ही निर्मित हुई है उसका तो हम हल कर सकते हैं, उसका तो हम निदान संभाल सकते हैं, विपश्यना कर लेंगे, अपनी जो इच्छाएं हैं उनको थोड़ा सा काबू में कर लेंगे, ध्यान की भावना करेंगे, या जो हमारी इच्छाएं हैं, जो हमारी आवश्यकताएं हैं, उनके लिए हम कोई रोजगार और जीविका के साधन तलाशेंगे। लेकिन जो अशांति, जो अपराध, जो असुरक्षा की भावनाएं और मानवीय जीवन और मूल्यों को बाधित करने वाली समाज के द्वारा, धर्म के द्वारा और राज्य और नेशन के द्वारा यदि हम पर अशांति थोप दी गई हो, एक व्यक्ति को पीढ़ी और दर पीढ़ी जानवर का मरा मांस खाने के लिए कहा गया हो, तो वो शांति क्या माला जपेगा, वो क्रांति नहीं करेगा। और यही तो बात बाबा साहब ने कही थी, गुलाम को गुलामी का एहसास करा दो, विद्रोह कर देगा। जब आप वहां का लोहा आदिवासियों का, उनकी जमीन का लोहा, उनकी जमीन का कोयला जब आप बेच देंगे
50 रुपया टन में धीरू भाई अंबानी के लिए और वेदांता की कंपनी के लिए, तो फिर लोग जो है लोग भजन करेंगे क्या, माला जपेंगे? लोग तो बंदूक ही उठाएंगे। आप मुझे बता दीजिए, अभी कोई आपको आपके घर से विस्थापित कर दे, आप क्या करोगे? भगवान बुद्ध ने खुद कहा है धम्मपद में, भगवान बुद्ध खुद कहते हैं धम्मपद में, एक जिज्ञासा परमा रोगा, भूख सबसे बड़ा रोग है। धम्मपद की गाथा है 203 नंबर की, उसमें खुद भगवान ने कहा है कि भूख सबसे बड़ा रोग है। अब भूख के लिए आपको आजीविका के साधन तलाशने होंगे, आजीविका के साधन के लिए आपको योग्य बनना होगा, योग्य बनने के लिए आपको पढ़ाई लिखाई करनी होगी, पढ़ाई लिखाई से आप वंचित कर दिए गए हैं, धर्म के द्वारा, समाज के द्वारा, राज्य के द्वारा। मैं नाम नहीं लूंगा, आप सब लोग हमसे ज्यादा आंदोलन भी चलाए हैं और बहुत ज्यादा भाषण भी सुने हैं। बाबा साहब अंबेडकर के साथ भी कुछ लोग, उनके साथ के भी लोग जिंदा होंगे, और दादा भाऊ बैरिस्टर खुबरा गड़े से लेकर कई लोगों के साथ, और साहब काशीराम जी का भी भाषण सुना होगा आप लोगों ने। ठीक है, तो भूख जो रोग है उसको मिटाने के लिए आप लोगों को क्या करना है? योग्य होना है। योग्य होने के लिए शिक्षित होना है। शिक्षित होने के लिए जब एक धर्म यह कहता है कि कोई भी व्यक्ति पढ़ता लिखता है उसकी जिह्वा काट लो, शब्दों को सुनता है उसके कान में पिघला हुआ शीशा डाल दो, तो आप मुझे बताइए कहां से शांति का पालन किया जाए? कौन सी शांति का पालन किया जाए? जो शांति, जो अशांति हमारे खुद के द्वारा निर्मित है उसको तो हम दूर कर सकते हैं, लेकिन जो अशांति राज्य के द्वारा और धर्म के द्वारा निर्मित है उसके लिए हमें सामूहिक तौर से संघ इकट्ठा होना होगा। इसीलिए बाबा साहब कहते हैं शिक्षित बनिए, संघर्ष कीजिए और संगठित होइए। जो बाबा का संघर्ष है वो इन्हीं बुराइयों के खिलाफ है, और शांति तब तक नहीं आएगी जब तक हर व्यक्ति को भोजन नहीं मिलेगा, हर व्यक्ति को उसकी योग्यता के अनुसार उसको काम नहीं मिलेगा, तब तक शांति नहीं आ सकती है। हमारे ही यहां से 3000 किलोमीटर की दूरी पर ईरान का बॉर्डर है, जहां पर इराक में आजकल, और इराक और सारे अरब देशों में इस्लामिक स्टेट नाम के एक विद्रोही संगठन जिसको ISIS कहते हैं, उसके नाम पर आंदोलन चल रहा है। पूरी दुनिया में अमेरिका तक उससे डरा हुआ है। अभी वो काला झंडा श्रीनगर में दिखाई दिया था, तो भारत की सरकार और भारत की सरकार के टॉप मोस्ट अधिकारी लोग उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगे। वो काला झंडा दिखा था ना उर्दू में, अभी श्रीनगर के एक चौक पर किसी बच्चे ने लहराया था। एक नेशन, एक झंडा लहरा जाने से श्रीनगर में डर जाता है। अमेरिका का राष्ट्रपति कहता है कि हम इसको खात्मे की बात करेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति का मैं आपको एक कोटेशन सुना देता हूं। ये जॉन कैरी हैं, अमेरिका के विदेश मंत्री। जॉन कैरी का कहना है कि जब तक अरब देशों से और थर्ड वर्ल्ड के देशों से, तीसरी दुनिया के देशों से गरीबी नहीं मिटेगी, तब तक उन देशों में शांति नहीं आ सकती है। आगे वो कहते हैं कि वहां पर स्वास्थ्य सेवाएं हमें डेवलप करनी होंगी। अपने घर का भाषण नहीं है, ये अखबार की कटिंग लेकर ही आया हूं, इसीलिए सबूत के साथ, क्योंकि बच्चों को पढ़ाता हूं तो वो बोल देते हैं यार सर ऐसे ही बोल रहे होंगे, क्योंकि काशीराम के भी साथ रहे हैं और वो झंडा डंडा उठाते रहे तो भाषणबाजी करते रहते हैं, तो इसलिए वो सबूत के साथ चलना पड़ता है। ठीक है, वो कहते हैं कि चाहे बोको हरम नाम की संस्था हो, आपको याद होगा अफ्रीकी देश में एक बोको हरम नाम की संस्था है जो कि 250 बच्चियों को उठाकर ले गए हैं उनके साथ दुराचार और व्यभिचार करने के लिए, स्कूल की बच्चियों को। वो कहते हैं चाहे बोको हरम हो, इस्लामिक स्टेट हो, अल शबाब हो, या दुनिया का कोई भी आतंकवादी संगठन हो, वह राष्ट्र निर्माण में कभी भी कोई योगदान नहीं देता है, बल्कि वह क्या करता है, लोगों को गुमराह करता है और लोगों को विद्रोह की ओर ले जाता है और मानवीय जीवन संकट में डाल देता है। सवाल यह है कि जिस बात को आज से 2500, आखिर उन देशों में ऐसी अशांति क्यों है?
हम उनसे भी नहीं पूछ रहे कि भाई आप इस्लामिक स्टेट के नाम पर लड़ क्यों रहे हो सकता हो उनके अनुसार, अभी भंते जी बोल रहे थे ना, जो आए थे वो कह रहे थे कि सारे धर्म अच्छे हैं, वो कह रहे थे कि हमको सारे धर्मों की बात सुननी चाहिए, माननी चाहिए, देखनी चाहिए। उन्होंने एक उदाहरण दिया मधुमक्खी का कि मधुमक्खी जाती है, वो हर फूल के छत्ते पर जाती है, वहां से शहद लेकर आती है, और सारे जो शहद है जो उसका और चीनी, उसका स्वाद मीठा ही होता है, वो चीनी चाहे दुनिया के किसी भी देश में बनी हो। तो सवाल यह है कि जब सारी दुनिया के जो धर्म प्रवर्तक लोग हुए हैं, पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब से लेके आपके गुरु गोविंद सिंह और गुरु नानक तक और भगवान बुद्ध तक, इन सभी संतों ने, महात्माओं ने और गुरुओं ने जब मानव सभ्यता की बात कही है, तो ऐसे लोग कहां से पैदा हो जाते हैं जो लोग 250 लड़कियों को उठा ले जाते हैं? ऐसे लोग कहां से पैदा हो जाते हैं जो किसी देश में कोई भी पत्रकार कवरेज करने गया, उसकी गर्दन काटते हुए वीडियो दुनिया में अपलोड कर देते हैं? ये जो मानसिकता है, ये मानसिकता राज्य के द्वारा निर्मित मानसिकता है। जब किसी व्यक्ति को यह लगने लगता है कि उसके संसाधनों पर दूसरे देश का हक है, उसको यह लगने लगता है, हमारे यहां नक्सलियों की समस्या क्या है? यही गढ़चिरौली है आपका, यही गोंदिया का जिला है ना, गोंदिया यही नागपुर से लगा हुआ है। नक्सलवाद की समस्या क्या है? जल, जमीन और जंगल की लड़ाई है। जब आप वहां का लोहा, आदिवासियों का, उनकी जमीन का लोहा, उनकी जमीन का कोयला जब आप बेच देंगे 50 रुपया टन में धीरू भाई अंबानी के लिए और वेदांता की कंपनी के लिए, तो फिर लोग जो है लोग भजन करेंगे क्या? माला जपेंगे? लोग तो बंदूक ही उठाएंगे। आप मुझे बता दीजिए, अभी कोई आपको आपके घर से विस्थापित कर दे, आप क्या करोगे? और वो भी आपको पता चले कि आपके घर के नीचे हीरे की खान है, आपके घर के नीचे कोयले की खान है, और वो केवल 2 लाख रुपए की जमीन नहीं है, वो 200 करोड़ की जमीन है। तब फिर आप क्या करेंगे? मरने मारने पे नहीं उतारू हो जाएंगे? इसके लिए भगवान बुद्ध ने जो भूख है, योग्यता है, योग्यता के अनुसार काम मिलना है, उसके लिए भगवान बुद्ध ने दीघ निकाय का एक कूटदंत सूत्र है, कूटदंत सूत्र में एक कथा सुनाते हैं। वो कहते हैं कि भाई, उन्होंने एक राजा को सुनाई थी कथा। वो कहते हैं कि महाराज, आपका राज जो है वो विघ्न बाधाओं से युक्त है। अब समझ लीजिए कि आज के समय में जैसे हमारे भंते जी हैं, नरेंद्र मोदी से बात करने जाएं, एक सुझाव देने, या हम ही लोग नागपुर के हैं, एक रिजोल्यूशन पास करें, वैसा ही डायलॉग मैं आपके सामने सुना रहा हूं। उसका ट्रांसलेशन है पाली का कि महाराज, आपका राज विघ्न बाधाओं से युक्त है, उत्पीड़न वाला है, राज्य में जगह जगह गांवों में लूट है, निगमों और नगरों में लूट है, छीना झपटी है। राजन, ऐसी स्थिति में जहां ग्राम, जनपद एवं नगरों में स्थान स्थान पर लूट हो रही हो, छीना झपटी हो रही हो, वहां पर आपको आपकी जनता से कर लेना, टैक्स लेना अच्छी बात नहीं है। अच्छा हो यदि आप ये विचार करें कि इस शहर में, मेरे इस देश में, मेरे इस नगर में, मेरे इस जनपद में दस्यु मतलब डकैतों का समूह क्यों पैदा हुआ है, चोर चोरी क्यों करते हैं, ये मार धाड़ क्यों है। मैं ऐसे लोगों को, चोरों को पकड़ लूं, चोरों को मार डालूं, उनको पकड़वा लूं और कारागार में डाल दूं, फांसी दे दूं, जान से मार दूं और इनकी निंदा कर दूं और इन्हें देश निकाला करके समूल रूप से नष्ट कर दूं। किंतु इतने से आप अपने राज्य की लूटपाट और दस्यु की जो समस्या है उससे मुक्त नहीं हो पाएंगे। और आपको क्या करना होगा, इसमें से जो लोग, क्योंकि आप दंड निकाला, कुछ लोग तो बच निकलेंगे ना, कुछ लोग बच निकलेंगे, तो भगवान कहते हैं इनमें से कुछ लोग बच निकलेंगे, वे आगे चल के आपकी जनता को और आपके राज्य के लिए चुनौती बनेंगे। इस दस्यु का समूल नाश राजन तभी हो सकता है जब कोई आपके पास आवे या आप अपने राज्य में ऐसा कार्य करें जहां उन्हें कृषि और गोरक्षा के लिए बीज दें, खेती के लिए जो आदमी खेती करना चाहता है उसके लिए उन्नतशील बीज दें, बैल दें, व्यापार के लिए पूंजी दें। अब जो आदमी पैसा वापस कर सकता है उसको तो हम पूंजी दे सकते हैं,
लेकिन जो पैसा वापस नहीं कर सकता है उसके लिए भगवान ने कहा है उसके लिए हम अनुदान दें, उसको हम ग्रांट दे दो, लो भाई तुम अपना व्यापार करो, दारू वारू मत पीना, काम करो, रोजगार चलाओ, बीवी बच्चे पालो। ऋण दें। अब जो आदमी, मान लो मेरे जैसे आदमी को लोन लेना हो, मैं क्यों मुफ्त में लूंगा, मैं कहूंगा भैया 10% का टैक्स लगा दो, मैं मेहनत करके वापस कर दूंगा, है ना। तो वो कहते हैं हम ऋण भी दे सकते हैं। इसके अलावा जो लोग, ये तो खेती की बात है, खेती के लिए, इसके अलावा जो लोग व्यापार के लिए आए उनको आप पूंजी दें और उनके व्यापार का संरक्षण करें। अब ऐसा ना हो कि हमने दुकान खोल दी 5 लाख रुपए का लोन लेके और सीतामढ़ी पे शाम को आके डकैत लूट के ले गए। तो व्यापार की भी सुरक्षा करना नेशन की जिम्मेदारी है। इसके अलावा जो लोग आपकी राज्य की सेवा करना चाहें, अब मान लीजिए मेरे जैसा आदमी है, खेती भी नहीं करता, मैं खेती बाड़ी, भाई गांव में खेती है लेकिन मैं नहीं जा पाता खेती करने, व्यापार भी मैं करता नहीं, दुकान नहीं, दिन भर पढ़ाना ही है, बोलना ही है। तो हमारे जैसे आदमी जो नौकरी करते हैं, हम जैसे लोग, उनके लिए भगवान ने कहा है कि जो लोग आपके राज्य में नौकरी करना चाहें उनके लिए सम्मानित जीवन व्यतीत करने हेतु योग्य वेतन दिया जाना चाहिए। अब ऐसा ना हो नागपुर की पुलिस का सिपाही तनख्वाह 18,000 रुपया, तो वो सीताबर्डी पे आपसे पैसे ही रिश्वत मांगेगा, क्योंकि उसको भी अपने बच्चे IIT में पढ़ाने हैं, उसको भी घर में 56 इंच का LCD का टीवी चाहिए। आप ही को थोड़ा ही शौक है टीवी देखने का बढ़िया वाला, आप ही को थोड़ा ही हवाई जहाज में यहां से बंबई जाके उड़ने का और महाबलेश्वर जाने का, उसका दिल नहीं करता, वो आदमी नहीं है, तो वो तो भ्रष्टाचार करेगा ही करेगा। तो भगवान कहते हैं कि उसके लिए सम्मानित जीवन व्यतीत करने के लिए योग्य वेतन दिया जाना चाहिए। इस तरह से वे लोग आपसे उपकृत हो जाएंगे और अपने राज्य में जहां वो रहते हैं ऐसा कोई कार्य नहीं करेंगे जिससे आपकी राज्य की हानि हो, जनता की हानि हो, और इसके द्वारा, उनके द्वारा किए गए व्यापार से, उनके द्वारा किए गई नौकरी से, उनके द्वारा किए गए कृषि कार्यों से आप कर लेकर अपने राज्य का कोष भी बढ़ा सकते हैं। इस तरह लोगों को सुखपूर्वक और बुद्धिमत्तापूर्ण व्यापार में, कृषि में और सेवाओं में लगा के आप अपने राज्य को अशांतिपूर्ण और चोर डकैती और लूट मार से मुक्त कर सकते हैं। यह कूटदंत सूत्र का हिंदी ट्रांसलेशन है जो मैंने आपको बताया, अपनी तरफ से इसमें मैंने कोई बात नहीं जोड़ी है। अब सवाल यह है, यह बात भगवान ने अब से 2600 साल पहले कही थी, क्या उस बात को पालन हो पाया? नहीं हो पाया। मुझे याद है, संसद की डिबेट याद है, हम तो उस समय जन्म नहीं लिए लेकिन पिताजी लोग बताते हैं, या वो डिबेट संसद में मौजूद है, कि नेहरू जी का कहना था, भाषण दे रहे थे कि भाई हम सबको रोटी देंगे, सबको खाना देंगे, सबको जमीन देंगे, सबको ये देंगे वो देंगे। तो बाबा साहब ने नेहरू को कहा कि भाई ये तो संतों का काम है, देंगे कैसे, अपने आप थोड़ी मिल जाएगा, उसके लिए कानून बनाना पड़ेगा। अब जाहिर सी बात है, जब कानून बनेगा तो कुछ लोगों को कष्ट होगा। आज बिहार में क्या है, बिहार में जो जमीन की समस्या है उसको लेके इतनी बड़ी समस्या है कि वहां रणबीर सेना, भूमिहार सेना, है ना, माले की सेना, और 60-60 लोगों को लाइन में लगा के भून दिया जाता है। वही जमीन की समस्या, जो तेल की समस्या है, वही वो इस्लामिक स्टेट की समस्या है, वही अरब देशों की समस्या है, वही समस्या आपके क्यूबा की समस्या है, वही समस्या आपके अफ्रीकी देशों की समस्या है। तो जब तक हम लोग निष्पक्ष होकर विचार नहीं करेंगे तब तक शांति राज्य में कायम ही नहीं हो सकती है, ऐसा मैं सोचता हूं। और बाकी थोड़ी सी धम्मपद की बात कर लें, भगवान ने बोला है तो हमें भी अच्छा लगता है बोलने के लिए। और उन्होंने कहा है, उसने मुझे मारा, उसने मुझे डांटा, उसने मुझे हराया, उसने मुझे लूट लिया, जो इस तरह की बातें अपने मन में बांधे रहता है उसका बैर कभी भी शांत नहीं होता। वो कहते हैं, इसके अलावा भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति है ना, यो सहसंग सहसेन संगामे मानुषे जिने एकं चा जेयमंतं सा वे संगमयुत्ते। अर्थात जो व्यक्ति युद्ध में हजारों लोगों को जीत लेता है वह जीत कोई जीत नहीं है। असली जीत कौन सी जीत है? जो अपने मन को जीत ले, यह भगवान ने कहा है। आगे अब यह इस्लामिक स्टेट के लोगों को बताया जाना चाहिए जो वो लोगों की गर्दन काट रहे हैं कि सब्बे तसंती दंडस सब्बे भयंती मच्चुनो अत्तानंग उपम तत्वा ना हने ना घाते। अर्थात सभी दंड से डरते हैं, सभी लोग पनिशमेंट से डरते हैं, यह बेसिक नेचर है। आप एक चीटा जा रहा हो उसको भी टच करें
तुरंत चींटी जा रही हो उसको भी टच करें, तो चींटी से लेके मनुष्य और बड़े बड़े प्राणी तक, जानवर पे बड़े बड़े बलशाली जो भी जानवर हैं, सभी लोग दंड से डरते हैं, सभी लोग मृत्यु से डरते हैं। मच्चुनो है ना, सब्बे भयांति मच्चुनो। और इसलिए हमको क्या नहीं करना चाहिए, हमको अपने समान ही समझना चाहिए। जैसे मेरे शरीर को कष्ट होगा ऐसे उस प्राणी को कष्ट होगा। इसलिए ना तो किसी को मारने के लिए प्रेरित करना चाहिए और ना ही उसके हत्या के प्रयास करने चाहिए और ना ही उस काम में संलग्न होना चाहिए। ये धम्मपद की गाथा है। और सबसे लास्ट की गाथा कहूंगा, जया जयं वेरं पस्वती दुखं सेति पराजितो उपसंतो सुखं सेति हित्वा जयं पराजं। तो यहाँ की जो अर्थव्यवस्था है कैसे बदलेगी? नहीं बदलेगी जब तक हम आप जैसे नवयुवक या बुजुर्ग लोगों की, कुछ पहले की जमाना था, पहले के युग था कि जो पढ़े लिखे लोग नहीं थे उनके एक वो संगठित होते थे। लेकिन आज हम जितने संगठित, जितने भी शिक्षित हो उतने भी कई टुकड़ियों में बट गए हैं। जयं वेरं पस्वती दुखं सेति पराजितो उपसंतो सुखं सेति हित्वा जयं पराजं। अर्थात विजय जो जीतना है, विजय जो है वो बैर को पैदा करती है और पराजित व्यक्ति सुख पूर्वक सोता है। लेकिन जो व्यक्ति जय और पराजय से मुक्त है और जिसने अपने सभी राग और द्वेषों को जीत लिया है, वही व्यक्ति असली में सुख पूर्वक सोता है। बस यही बात कहूंगा। तो इसलिए संग्रामों से कुछ नहीं होने वाला। राज्य को सुधरना पड़ेगा, सरकारों को सुधरना पड़ेगा। दूसरे के जल जमीन जंगल कब्जाएंगे तो दुनिया में शांति रहेगी। हाँ, बस इतना हो सकता है, हम सुधरें, अपने आप को सुधारें, अपने खुद को सुधारें। और बुद्धिज्म की जो सबसे लास्ट की गाथा है धम्मपद की, अपनी भाषण में लास्ट की, धम्मपद की तो लास्ट नहीं है, धम्मपद की तो वो 183 नंबर की गाथा है। सब पापस आकर्णं कुशलस्सुप संपदा साचित पर्योत्पन्नं एतं बुद्धानुशासनं। सभी तरह के पापों का ना करना, कुशल कर्मों को उत्पन्न करना, यही बुद्धों की शिक्षा है। और अपने चित्त को परिशुद्ध रखना चाहिए, यही बुद्धों की शिक्षा है। हमारा सबका मंगल हो, दुनिया में शांति कायम हो। ठीक है, बाबा साहब और बुद्ध के विचारों का पूरी दुनिया में प्रचार प्रसार फैले और पूरी दुनिया सचमुच में शांति के लिए अग्रसर हो और हमारे जीवने साहब जैसे लोग दीर्घायु हों, शतायु हों और इनकी पूरी टीम, उनके मैं मंगल की कामना करता हूं। जय भीम, नमो बुद्धाय। Now I request Venerable Kamal Kirti Bhante ji to please guide us. सम्मानित धम्मबंधु व उपासकगण, हम भी अभी ज़्यादा दिन, हमें तो सभी विषयों पे हमने अध्ययन नहीं किया है, फिर भी जहाँ विश्व लेवल पर यदि बात है तो वास्तव में अगर देखा जाए तो अगर हम अपने भारत देश की ही बात अगर करें और भारत के लोगों की ही बात करें या देश प्रदेश गांव या जिला की ही बात करें तो तथागत बुद्ध ने भी कहा था कि जिस देश में सुरा और सुंदरी का सेवन ज्यादा होगा तो निश्चित है कि वह देश सुखी नहीं रहेगा। कि सुखी रहेगा? कभी नहीं सुखी रहेगा। इसलिए कि जो पंचशील का जो पांचवा शील है वह निश्चित है कि जो अपने से बहुत से ऐसे लोग भाषण देने वाले होते हैं फिर भी वो उसमें ज्यादा लिप्त हैं। क्यों? इसलिए कि वो ये नहीं जानते, जैसे एक धम्मपद में है, तो आप लोग भी बहुत दूर से आए हैं, हम भी बहुत दूर से आए हैं, तो धम्मपद में है कि किच्छो मनुष्य पट्टिलाभं किच्छो मच्चान जीवंतं और किच्छो सधम श्रवण किच्छो बुद्धो उपादो, यानी मनुष्य की योनि मिली है तो मुश्किल से मिली है
और मनुष्य का जीवन भी बना रहता है तो मुश्किल से बना रहता है। अच्छी बात भी सुनना होता है तो मुश्किल से सुनना होता है। बुद्ध का जन्म हुआ है तो मुश्किल से जन्म हुआ है। अगर ये लोगों के अंदर ये भावना आ जाए कि वास्तव हमें जिस तत्व से हम आप बने, यह तत्व किस तौर तरीके से संगठित होता है, तो हमें आपको भी जो तथागत बुद्ध की जो पंचशील है, उस पंचशील पे हम आपको आगे आना होगा, घर से लेकर के देश तक। फिर इसी पंचशील के आधारित पे तथागत बुद्ध ने कहा था कि भाई 5 बड़ी जाएं जो देश में लागू है, तो कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका इस भारत देश में इस समय 5 बड़ी जा लागू है, तो भारत देश नहीं सुखी होगा, क्रांति ही क्रांति होगी। तो हमें आपको तो निश्चित है कि इस क्रांति में आपको मध्यम मार्ग का, जो तथागत बुद्ध ने कहा है कि मध्यम मार्ग को आपको अपनाना पड़ेगा। तो निश्चित है कि जो हमारे भारत देश से तथागत बुद्ध का जो धम्म गया, हमारे आपके इस भारत देश में पुनः धम्म आ सकता है, जब तक हम आप 5 बड़ी जाओं पर हम एक, जैसे बाबा साहब ने कहा कि शिक्षित करो, बनो नहीं, शिक्षित करो। तो हम आपको यहाँ एक तरीके से, चाहे भंते जी हों या उपासक जी हों या बहुत बड़े हों, तो हम आपको एक तरीके से शिक्षित करने के लिए, अभी हमने जैसे विश्व शांति के लेवल में हमको अगर रखा गया, तो वास्तव में इसमें हमने जो है हम चिन्ह नहीं लगाए थे, मास्टर साहब को कह दिए थे कि किसी में भी हमको डाल दीजिएगा, वो अपना नाम डाल दिए थे। तो अभी हमारी उपासिका जी कहने लगी कि आपका नाम है, तो हम कहा भाई ठीक है, हम इस पे तो अभी थोड़ा सा विचार करेंगे, अगर आप कहेंगे तो बोलेंगे। तो सिर्फ जो 5 बड़ी जाएं हैं, बौद्ध गया में मैं गया था, दलाई लामा जी आए थे, वहां भी उनके कार्यक्रम में बिहार में मांस यानी मछलियों के टुकड़े बिक रहे थे। तो कुछ हम जैसे जो वास्तव में जो कभी भी कैसा भी किसी वस्तु का सेवन नहीं किया है, हम लोगों ने विरोध किया कि यहाँ जो है मांस नहीं बिकेगी, मांस यहाँ नहीं बिकेगी। और उसके साथ साथ यहाँ जो भी जो जिसको कहते क्या कहते दारू या जो भी है, ये भी यहाँ नहीं बिकेगी। तब तो शायद या कुछ न कुछ काम किया जा सकता है, बनाया जा सकता है। तो हम आपको जरूरत है कि चाहे जितने भी धनी धनाढ्य हों, पूंजीपति लोग हों, तो इस तरीके से अगर जो तथागत बुद्ध का जो मध्यम मार्ग को, तथागत गौतम बुद्ध के मार्ग को जान करके दूसरों को ही शिक्षित करें, और स्वयं अपने आप को ये ढालना पड़ेगा। जैसे बचपन में शायद मैं भी छोटा सा एक कविता के रूप में बनाया था कि करो संगठन की व्यवस्था, बदलो अर्थव्यवस्था को। तो यहाँ की जो अर्थव्यवस्था है कैसे बदलेगी? नहीं बदलेगी जब तक हम आप जैसे नवयुवक या बुजुर्ग लोगों की, कुछ पहले की जमाना था, पहले के युग था कि जो पढ़े लिखे लोग नहीं थे, उनके एक वो संगठित होते थे। लेकिन आज हम जितने संगठित, जितने भी शिक्षित हो गए, उतने भी कई टुकड़ियों में बट गए हैं। कैसे शांति आएगी? शांति नहीं आएगी। हम इन्हीं के साथ आप सबकी मंगल कामना करता हूं। बाबा साहेब ने पंचशील बुद्ध धम्म की दीक्षा 1956 में दी, और हम आज भी प्रश्न पूछते हैं कि हम शांत नहीं है। ये कैसा प्रश्न है? मुझे तो लगता बुद्ध धम्म हमें समझा नहीं, कि हमें बाबा साहब नहीं समझे, कि हमें शील नहीं समझा, त्रिशरण नहीं समझा, आर्य अष्टांगिक मार्ग नहीं समझा, कि 22 प्रतिज्ञा नहीं समझी। अल्टीमेटली हम हर एक व्यक्ति ने अपने आप से पूछे, हमें इन चीजों में से क्या समझा? तो हमारे पास तो जवाब आएगा कि हमें सब समझा, क्योंकि 56 साल के ऊपर हो गए। एक जमाना था, मेरे डैडी आर्किटेक्ट परमानंद रामटे के, बाबा साहब आम्बेडकर जब इंदौरा में आए थे, तब हमारे डैडी ने और बाकी जो उनके कलीग है वो यहाँ पे भी बैठे हैं, मैं जानती हूँ उन लोगों को, काफी उन लोगों ने स्ट्रगल किया था।
लेकिन उस समय वो आम्बेडकराइट्स मिशन थी। जिस दिन से बुद्ध धम्म की दीक्षा मिली उसके बाद आम्बेडकराइट एंड बुद्धिज्म का मिशन शुरू हुआ। बट एक जो वड़ का पेड़ होता है, तो वड़ का पेड़ तो मेरे डैडी है या उनके कलीग है जो आम्बेडकराइट के स्ट्रगल में जिए हैं, और मैं उनकी बच्ची जो आम्बेडकराइट के छत्र छाया में हूं, लेकिन बीज मुझे बुद्धिज्म का मिला है। एक जमाना था जब हमारे जो पुराने लोग थे सारी देवी देवताओं की पूजा करते थे, मैं भी पूजा करती थी। लेकिन जब 50 साल हो गए थे बुद्ध धम्म की दीक्षा मिली, उस दिन मैंने बोला आज दिवाली का दिन है, महामोग्गलेन की हत्या की गई थी, नहीं करूंगी आज से दिवाली। उस दिन मेरी ही माताजी मेरे घर आई, तो भिखारिन बन जाएगी, तो ये लक्ष्मी को फेंक देगी तो कैसा होगा। अरे उनको हमें क्रिटिसाइज नहीं करना है, वो तो वड़ का पेड़ है। उनके माँ बाप ने जो उनको शिक्षा दी थी वो ही वो आज है। हमारे माँ बाप ने जो हमें शिक्षा दी वो हम आज है। तो हम किसी को क्रिटिसाइज नहीं करते, वो पेरेंट्स है, हर किसी के पेरेंट्स है। उनके माँ बाप भी कोई हिंदू धर्म की पूजा करते थे, कोई बाबा फरीद की पूजा करते थे, बट वो धम्म में थे। कम से कम भगवान के नाम पे तो शील का तो पालन करते थे, कम से कम भगवान के नाम पे तो चना गुड़ और खोबरा तो लाते थे शुक्रवार को। आज तुम क्या लाते हो? आज के माँ बाप को तो फुर्सत ही नहीं है घर में आने के लिए, वो तो पूरा टाइम बाहर पैसे के पीछे घूम रहे हैं। उनको ऐसा लगता है एटीएम कार्ड बच्चों के हाथ में दे दिया कि हो गया। हम तो अच्छे धर्मिष्ठ बने, पर पता नहीं हमारे बच्चों का क्या होगा। हमारे बच्चे तो जय भीम भी करना भूल गए। जो आने वाले तुम्हारे नातू लोग हैं, तुम्हारे बच्चे हैं छोटे छोटे, वो बाबा साहब को कम जानते और हनी सिंह को ज्यादा जानते। तो हमारी दृष्टि उस तरफ है, हमारा जो मिशन है उस तरफ है। छत्र छाया बाबा की है, बीज हमको बुद्ध का मिला है, लेकिन ये बीज भी अभी सिर्फ एक पौधा है, और इसको जो आने वाले जो फल अभी जो आएंगे और जो बीज गिरेगा वो हनी सिंह को नहीं पहचानना चाहिए। उसने बुद्ध को, उसके त्रिशरण को, उसके पंचशील को, उसके आर्य अष्टांगिक मार्ग को और 37 बोधिया पक्कों को समझना चाहिए। इसीलिए हर घर में बाबा साहब जैसे कहते हैं, एक स्त्री शिक्षित असेल तर पूर्ण घर शिक्षित राहील, तशासारखं एक स्त्री बुद्धमय झाली कि पूर्ण घर बुद्धमय होईल, हे मी म्हणते। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगी, स्त्री का जब जन्म होता है तो कई पीढ़ियों से दुख माना जाता है। जिस भी घर में स्त्री का जन्म होता है, अरे काय झालं रे पोरगी, जाऊ दे काय करायचं आहे, आणि काय रे काय झालं रे पोरगा, अन्न पेढे अन्न, ये मेंटालिटी बुद्धिस्ट जो लोग हैं उनकी मेंटालिटी अलग है। वो उनके घर में बेटी हुई तो अगर किसी ने पूछा काय झालं रे, पोरासारखी झाली रे, माय पोरगी झाली, पण मुलगी असून ती मुलासारखी असते। आमच्या घरी पण 4 मुली झाल्या। 4 मुलीनंतर माझे आजोबा, काय पोरीच पोरी आहे का, पोरं कुठं कधी होतील म्हणते। ठीक आहे, लागली लाईन, 4 पोरं झाले। ठीक आहे, पण माझे पप्पा आंबेडकराईट असल्यामुळे माझे म्हणे हे 4 पिलर आहेत म्हणे,
ह्या माझ्या 4 मुली 4 दिशेला जातील आणि हे माझे 4 मुलं 4 दिशेला जातील. अशा 8 दिशेला माझी मुलं जातील. ह्या मुली मुली नाहीत, हे मुलं आहेत माझी. असं ते त्यावेळेसचं बोलचाल. आजच्या काळात तर काही राहिलंच नाही. दो बच्चे चाहिए बस, उसके ऊपर तीसरा नहीं चाहिए, तो रोकना पड़ता, नहीं तो फिर से लाइन लग गई रहती. ठीक है, अब तो स्त्री शक्ति और स्त्री मुक्ति 2 चीजें चलती है. पुरुष इतका मायाळ झालाय की तो स्त्रीला फुलासारखं जपतोय. कोणाच्याही घरात जा, कुठे जा, तुम्हाला तिला फुलासारखं जपल्या जातं. एकेकाळी जेव्हा नवीन नवीन सून कोणाच्या घरात यायची तर तिला घरात राब राब सगळी कामं करावी लागायची. पण आजच्या काळामध्ये जर एखादी नवीन सून जाते, ए बाई तू बस, अशी सासू बोलते. हे आजचा काळ. पण सासू बोलता बोलता हे पण बोलते, तुला तर सुख मिळत आहे ग बाई, मला तर नव्हतं मिळत. हे झालं वुमेन एम्पॉवरमेंट. पुरुष हा स्त्रीला सांभाळतो. कुठेही बघा, वडील म्हणून, भाऊ म्हणून, मुलगा म्हणून आणि जावई म्हणून, नवरा म्हणून हा पुरुष त्या स्त्रीला सांभाळतो. पण स्त्रीवर स्त्रीचंच आधिपत्य चालते. स्त्रीला खुल्या मनाने जगू देत नाही, स्त्रीला खुल्या मनाने राहू देत नाही. आजही तुम्ही 100 घरामध्ये जा, आपण म्हणतो भगवान बुद्धाची पूजा म्हणजे काय? भगवान बुद्धाची पूजा म्हणजे त्रिशरण, पंचशील, आर्याष्टांगिक मार्ग, शील, समाधी, प्रज्ञा. खूप लंबी प्रोसीजर आहे, पण आहे छोटीशी. लेकिन मैंने एक एम ये भी बनाया है कि लर्निंग बुद्धिज़्म, स्प्रेडिंग बुद्धिज़्म, ये भी मेरा एक एम मैंने बना के रखा है. तीर से तलवार से ना युद्ध की ललकार से, तीर से तलवार से ना युद्ध की ललकार से, लाएंगे हम क्रांतियाँ सब बुद्ध के ही ज्ञान से. आजची नारी काय करते? तू हे एवढं लांब लांब परित्राण करत राहते का? अरे अगरबत्ती लाव, मेणबत्ती लाव, झाली बुद्ध वंदना. असं नाही. बुद्ध वंदना म्हणजे उपोषताचा अर्थ, उपोषताचं पालन. अमावस्या, पौर्णिमा आणि 2 अष्टमीला तिने उपोषताचं पालन केल्याच पाहिजे. 8 शिलाचं पालन तिथे झाल्याच पाहिजे त्या घरात. आणि मग बघा कसं तुमच्या घरामध्ये चेंज होतो. छोटी छोटी मुलं उपोषताचं पालन करायला लागतात. छोटी छोटी मुलं ध्यानाला बसतात, ध्यान करतात, वंदना करतात आणि काय ते घर सुखमय होतं. चिडचिड करणारा व्यक्ती शांत होतो त्या घरात आला की. हे उपोषत. त्याच बाबतीत अजून जर तुमच्याने उपोषत होत नाही, पंचशील आहेत. बनोभंते बांगलादेशचे जे अरंत भिक्षू आहेत ते म्हणतात की तुम्ही फक्त 3 वर्ष कंटिन्युअस फक्त 5 शिलाचं पालन करा. 4थ्या वर्षी तुमच्या घरी पैशाचा पाऊस पडणं सुरू होतो. अरे तुम्ही शीलच नाही तोडलं तर पैसा नाही येणार का? शील तुटलं की पैसा गेला, सगळ्याच बाबतीत गेला. एंटरटेनमेंट आहे, हे आहे, ते आहे, सगळंच काही आलंय. पुन्हा आता त्याच्यामध्ये जर अजून शिलाचं पालन केलं, उपोषताचं पालन केलं, पुन्हा त्याच्यावर 10 शिलाचं पालन जे करतात त्या भिक्खुनी
श्रमणी बरोबर 10 शिलाचं पालन केलं तर एक भिक्खुणीचा जो स्तंभ आहे तो उभारून उभा होईल. त्यानंतर श्रमणांनंतरची वरची स्टेज असते उपसंपदा. उपसंपदेमध्ये त्यांना 311 नियमाचं पालन असतं स्त्रियांना. त्या स्त्रियांनी जर 311 नियमाचं पालन परिपूर्ण केलं तर त्या सुद्धा वरती जाऊ शकतात. हे वुमेन एम्पॉवरमेंट आहे. हे वुमेन एम्पॉवरमेंट कशासाठी तर थेरी गाथामध्ये काही थेरी अरंत झाल्या आहेत. आजचा तो काळ मला माझ्या दृष्टीने दिसत नहीं. कुठेतरी आपली पण चूक होते. तो हमको शील का पालन करना बहुत जरूरी है और शील का पालन अगर हम करते हैं प्रॉपरली तो मुझे नहीं लगता कि ऐसे व्यभिचार और कोई ऐसी गंदी हरकतें कोई करेगा. अगर तुम प्रॉपर अपने शील में रहते हो. बोलेगा कोई मुझे कि ये तो बुढ़ापे वाली स्टाइल चल रही है. बहनों वेस्टर्नाइज हो जाओ, कोई टेंशन नहीं, वेस्टर्नाइज हो सकते, बट वुमेन एम्पावरमेंट तब आएगा जब तुम शील समाधि प्रज्ञा का ध्यान करोगे और अरहंत और उधर आगे बढ़ोगे तो ही तुम्हारा कल्याण है. साधु साधु साधु. मयूरा चौधरी जी आप आइए और 2 मिनट अपना विचार यहाँ रखें. आई हैव रोट देयर अबाउट बुद्धिज़्म कि ये जो बुद्धा जो थे उन्होंने कभी भेदभाव नहीं किया है बुद्धिज़्म में. मैंने उस बारे में लिखा है कि कभी भेदभाव नहीं किया वुमेन्स में और मैन में. उन्होंने कभी नहीं किया. उन्होंने वही सब चीज़ें एक नन को भी दी है जो हम भिक्षुनी कहते हैं. उनको वही सब चीज़ें सिखाई है जो मेल भिक्षु को सिखाई गई है. उन्होंने कोई चीज़ का भेदभाव नहीं किया है. और उनमें मैंने यही लिखा है कि बुद्धा जो है उनके जो मेडिटेशंस जो है उन मेरे को बहुत हेल्पफुल रहे हैं क्योंकि इट प्यूरिफाइज द थॉट्स. बहुत अच्छा है ये क्योंकि वर्ल्ड पीस के बारे में भी मैंने थोड़ा लिखा है कि जिससे हमको बहुत कुछ सीखने मिलता है. हम अपने खुद को जानते हैं और पहचान सकते हैं खुद के बारे में. मेरा एम लोग कहते हैं कि एम बहुत सारे हैं. मेरे भी बहुत सारे एम हैं जो मैं भी कर रही हूँ. लेकिन मैंने एक एम ये भी बनाया है कि लर्निंग बुद्धिज़्म स्प्रेडिंग बुद्धिज़्म ये भी मेरा एक एम मैंने बना के रखा है. और मैं अपने पेरेंट्स को भी थैंक यू कहना चाहती हूँ क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ सिखाया है मुझे बुद्धिज़्म के बारे में. जैसे बताया है कि और मैं अपने तक कभी ये बुद्धिज़्म मैंने रखा नहीं है. जो भी मेरे फ्रेंड्स आए हैं मैंने उनको बताया है कि ये क्या है. कि मेरे को इतनी खुशी हो रही है कि मैं यहाँ पे आके ये बोल रही हूँ और इतने अच्छे लोगों से मैंने सब सुना है जो मुझे अभी तक अपॉर्चुनिटी नहीं मिली. अब तक मेरा सिर्फ फ्रेंड्स लोगों के तक ये सीमित था. लेकिन अभी मैं और लोगों को जोड़ना चाहूँगी, अपने फ्रेंड्स लोगों को और बताना चाहूँगी. अभी फ़िलहाल मुझे ये बिल्कुल नॉलेज नहीं था ये कॉन्फ्रेंस के बारे में. फ़र्स्ट टाइम मैंने अटेंड किया है. मैं बहुत बहुत खुश हूँ सर, रियली बहुत खुश हूँ. और यहाँ पे जो भी वुमेन्स है और मुझे बहुत अच्छा लगा है कि वुमेन्स लोगों ने इतना सामने रह के ये सब चीज़ें की है, लिखी है और बोल रहे हैं. मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि और भी वुमेन्स जुड़े. जैसे अभी है थोड़े अभी जैसे मैम ने बोला है कि और वुमेन्स जुड़ेंगे और मेरी भी बोई रहेगी. हम सबको पार्टिसिपेट करना है कि और भी वुमेन्स जुड़े इस चीज़ को लेके. और थैंक यू सो मच. तीर से तलवार से ना युद्ध की ललकार से, तीर से तलवार से ना युद्ध की ललकार से, लाएंगे हम क्रांतियाँ सब बुद्ध के ही ज्ञान से. विमेन एम्पावरमेंट और आज जो महिलाओं के ऊपर यानी महिलाओं का सशक्तिकरण, महिलाओं के ऊपर जो भी कुछ अत्याचार हो रहे हैं तो उसके अगेंस्ट में हम लोगों ने आवाज़ कैसे उठानी चाहिए और कैसे किसी भी महिलाओं के ऊपर अगर उसका शोषण होता है, उसके ऊपर अन्याय होता है तो फिर हमारी कम्युनिटी एक साथ आकर रास्ते पे आके आंदोलन करती है. राइट. तो ये तो ठीक है, ये सब ठीक बात है. फिर फास्ट ट्रैक कमिटीज़ बैठती है, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स की निर्मित होती है. ये सब होने से पहले मुझे ऐसा लगता है कि हम लोगों की इसकी जड़ कहाँ पे है, यानी क्या हिस्ट्री है, क्यों हमारे वुमेन के ऊपर अत्याचार हो रहा है, क्या ये सदियों से चलते आ रहा है. तो ऊपर से हम लोग जो कमिटीज़ बैठते हैं फिर उनके डिसीजन आते हैं, ये देखने से पहले यहाँ की व्यवस्था क्या है इसकी हम लोग को स्टडी करनी होगी. क्योंकि बाबा साहब कहते हैं ना कि जो लोग हिस्ट्री को भूल जाते हैं वो हिस्ट्री नहीं बना पाते. राइट.
तो हम लोगों को ना पहले हिस्ट्री में जाना होगा। हिस्ट्री में जाने से पहले हम देखेंगे, हिस्ट्री में जाते समय हम लोग को ऐसा चित्र देखने को मिलता है, या अगर हम लोगों ने हिस्ट्री पढ़ी है तो उसमें कुछ कालखंड लिखे हैं, जैसे कि प्राचीन कालखंड, मध्ययुगीन कालखंड, महाभारत का कालखंड, रामायण का, ब्रिटिश का कालखंड और स्वतंत्र भारत की महिलाएं। ऐसे पूरे जो कालखंड है इसका हमें अभ्यास करना होगा कि कौन कौन से कालखंड में हमारी महिलाओं की स्थिति किस टाइप की थी। तो प्राचीन भारत में एक हड़प्पा संस्कृति का आपने नाम सुना होगा, सुना ना? हड़प्पा संस्कृति में क्या होता था कि महिला, वहां पे एक मातृसत्ताक पद्धति थी। मातृसत्ता का भी ऑब्वियसली अब बुद्धिजीवी पीपल सब यहाँ पे बैठे हैं तो आपको उसका अर्थ पता होगा, यानी माता के नाम से, महिला के नाम से चलने वाली सत्ता, यानी जो वंश है वो भी उसके नाम से चलता था और उस कालखंड की महिला अधिकार संपन्न रहती थी, पूरी सत्ता उसके हाथ में रहती थी। अभी सत्ता उसके हाथ में रहती तो इसका मतलब ये है क्या करके वो पुरुष लोगों का द्वेष करती थी? नेवर। यहाँ पे कैसा था करके इक्वालिटी, उस समय हम लोग इक्वालिटी देखते थे, जो कि हड़प्पा संस्कृति थे। हड़प्पा संस्कृति में हम लोगों ने देखी, आज भी अगर हम लोग पढ़ते हो तो, और वो संस्कृति थोड़े मायने पे, अपने आगरी कोलिया का नाम सुना, जो मुंबई साइड में बहुत सारे लोग वहां पे रहते, तो उस कम्युनिटी में भी हम लोगों को कुछ हद तक यानी महिलाओं की सत्ता देखने को मिलती है। तो वो वही का मीन्स प्रभाव है। अपन बोलते हैं ना कोलिया लोग, तो तथागत बुद्ध की जो अपनी महामाया थी वो कौन से वंश की थी? कोलिया। तो ऑब्वियसली ये इतिहास भी हम लोगों ने उनको बताना चाहिए कि उनका ये यानी कोलिया वंश का इफेक्ट, प्रभाव उन लोगों के ऊपर है, इसीलिए आज भी वहां पे स्त्री जाति की सत्ता चलती है। तो इस तरह से स्त्रियों की सत्ता थी, अधिकार संपन्न स्त्री हड़प्पा संस्कृति में थी। लेकिन धीरे धीरे क्या होकर के बाहर के जो आर्य लोग आए, तो उन लोगों ने क्या किया कि उन्होंने ये देखा कि यहाँ की जो सत्ता है वो एक स्त्री के हाथ में है। यही बात उनको इंसल्टिंग फील हुई और वहीं से शुरू हुआ थोड़ा सा वैदिक का जो अपन एरा ले, तो उसमें थोड़े से जो शुरू में अगर हम लोग देखेंगे तो शुरू में स्त्री स्वतंत्र थी, लेकिन उसके बाद जो आर्य आए उनको ये बात इतनी इंसल्टिंग लगी और तभी से शुरू हुआ महिलाओं पे अत्याचार, महिलाओं का शोषण। 2500 साल पहले स्त्री पुरुष समानता की बात अगर इस पृथ्वी पे किस महामानव ने की होंगी तो वह है तथागत भगवान गौतम बुद्ध। जेवढा काही स्त्रियांचा लोंढा आहे हा बुद्ध धम्माकडे आकर्षित झालेला होता। कारण कसं की फक्त स्त्रियांना कधी न बघणारी वागणूक हे फक्त तथागतांच्या धम्मामध्ये त्यांना मिळाली। प्रवज्जेचा अधिकार तथागत बुद्धांनी दिला। प्रसेनजित राजाला जेव्हा मुलगी होते तेव्हा तो अतिशय हताश होतो आणि हताश झाल्यानंतर त्याच्या निराश होण्याचं कारण तथागत बुद्ध विचारतात। तर तथागत बुद्ध ओळखून घेतात की याला मुलगी झाली म्हणून हा निराश झालेला आहे, परंतु उपदेश करताना बुद्ध काय म्हणतात की हे राजा, तुला कन्यारत्न प्राप्त झालं म्हणून तू निराश होऊ नकोस। कन्या ही पुत्रापेक्षाही श्रेष्ठ असते, कारण तिच्या उदरामधून महान बोधिसत्व आणि महान रत्ने जन्म घेत असतात। म्हणजे विचार करा केवढा मोठा आम्हा स्त्रियांना तथागत बुद्धांनी सन्मान मिळवून दिला। केवढं मोठं हे उदाहरण कशाची ग्वाही देते। त्याच्यानंतर आजची जी आमची सक्षम स्त्री उभी आहे ती कशामुळे? डॉक्टर बाबा साहब ने लिखे हुए संविधान की वजह से आज हम इतने सभा सम्मेलन पे हमारी महिलाएं सम्मान के साथ डायस पे बैठी हुए। किसके वजह से? डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर ने दिए हुए संविधान के वजह से। हिंदू कोड बिल कोणासाठी तयार केलंय? 139 आर्टिकल्स, 7 पार्ट्स अँड 9 लाईन्स मध्ये विभागलेलं हिंदू कोड बिल हिंदू स्त्रियांसाठी होतं। परंतु डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांना वाईट कशाचं वाटलं? 1946 पासून ते 1950 म्हणजे 4 वर्ष अथक परिश्रमाने बाबासाहेबांनी हिंदू कोड बिल तयार केलाय। काय आहे त्या हिंदू कोड बिल मध्ये? आमच्या स्त्रियांनी वाचायला हवं। केवढे आम्हाला राईट्स दिले, दत्तक राईट्स, संपत्तीचा प्रॉपर्टी राईट्स कुठून मिळाला? ठीक आहे, त्यावेळेस ते हिंदू कोड बिल पास झालं नसेल, पण आज 10-10 वर्षांनी त्याचे कलमच्या रूपामध्ये बदल होत आहे। हा हिंदू कोड बिलाचा आपल्याला विजयच म्हणावा लागेल। हे सगळं डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनीच त्यामध्ये आधीच नमूद केलेलं आहे। पण बाबासाहेबांना रिझाईन केलं 1951 ला।
आहेत लॉ मंत्री असताना आज आपले कुठले मिनिस्टर करू शकतात? खुर्चीसाठी भांडतात. परंतु केवळ हिंदू कोड बिल पास व्हावं यासाठी त्यांनी पार्लमेंटमध्ये बाबासाहेब राहिले आणि ते पास होऊ शकले नाही. त्याच्यामुळे त्यांनी रिझाईन केलं. अतिशय दुःखद अंतःकरणाने का परंतु बाबासाहेबांना आश्चर्य या गोष्टीचं वाटलं की एक स्त्री सुद्धा या बिलाला विरोध करते आहे का. जेव्हा चेंबरमध्ये सन्मानपूर्वकरित्या स्त्रियांना बाबासाहेबांनी बोलावलं आणि आल्यानंतर स्त्रियांना एक प्रश्न केला बाबासाहेबांनी. कुठला प्रश्न केला कि आपने ये हिंदू कोड बिल पढ़ा है? उस पे वो महिलाएं बोली कि जी नहीं. आपको पता है इस बिल में क्या लिखा है? उनका आंसर है कि नहीं, हम लोगों कुछ भी, हम लोग पूरे ब्लैंक है, डोंट नो व्हाट इज हिंदू कोड बिल एंड व्हाट इज एक्सप्लेनिंग इन हिंदू कोड बिल्स. तर बाबासाहेब म्हणाले तरी सुद्धा तुम्ही या बिलाला विरोध करत आहात. तेव्हा त्या स्त्रियांना फार गहिवरून आणलं आणि त्या महिला काय म्हणाल्यात की हो बाबासाहेब, आम्हाला माहिती आहे की हे आमच्याच हिताचं बिल आहे ते, परंतु आमच्या घरच्या नवऱ्यांनी आम्हाला काय सांगून ठेवलं की जा आणि त्या बाबासाहेबांच्या हिंदू कोड बिलाला विरोध करू नये. तू असं जर नाही करशील तर मी दुसरं लग्न करेन. म्हणजे विचार करा, त्या स्त्रीने काय उत्तर दिलं की सवत पत्करण्यापेक्षा बरं म्हणे हिंदू कोड बिलाला विरोध केलेला, म्हणून आम्ही या बिलाला विरोध करतो. हे उत्तर ऐकून बाबासाहेब एवढे सरप्राईज झाले, एवढा त्यांना शॉक लागलं की ज्या देशामध्ये दगडधोंड्याची निर्जीव प्राण्याची पूजा करण्यात येते त्या देशामधली स्त्री ही इतकी परावलंबी असावी की तिला स्वतःचे विचार सुद्धा मांडण्याचा अधिकार नसावा, एवढी तिची दयनीय अवस्था असावी. आणि तेव्हापासून डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी रामोला पत्र लिहिताना बाबासाहेब म्हणतात की रमाई, जोपर्यंत मी येथील स्त्रियांना त्यांचे हक्क अधिकार घटनेद्वारे मिळवून देत नाही तोपर्यंत माझा रक्ताचा शेवटचा थेंब असेपर्यंत मी त्यांच्यासाठीच लढत राहणार. ही कशाची ग्वाही देत आहे? काय आहे अंडर आर्टिकल 14, काय आहे 18, काय आहे 21? राईट टू एज्युकेशन, राईट टू लिव्ह, राईट टू लिबर्टी, राईट टू वोट. आम्हाला मतदानाचा अधिकार. मी अंध दिवस होता त्या दिवशी, परंतु मी असं गृहीत धरते की तुम्ही खूप डोळसपणे तो अधिकार वापरला असणार. युरोप खंडामध्ये 250 वर्ष लागले मतदानाचा अधिकार मिळवण्यासाठी तेथील महिलांना. इंग्लंडमध्ये आमच्या महिलांना 100 वर्ष त्यासाठी संघर्ष करावा लागला. परंतु डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या बुद्धिमत्तेने बाबासाहेबांनी आम्हाला केवळ एका क्षणात घटनेच्या माध्यमातून आम्हाला मताचा अधिकार बहाल केला, त्यामध्ये स्त्रियांना सुद्धा. याची दखल आम्हा स्त्रीने घेतली पाहिजे.